Secondly, yes, we can look at wins and losses, and we'll raise our hands and say that we didn't win in Australia. But there were a lot of things that we did right in Australia, a lot of things that we want to take forward with us. There were some mistakes that we made that cost us probably the Melbourne and the Sydney Test match, but as a team, I think we were heading in the right direction. So that's something that we'll take with us. And then as far as Bangladesh is concerned, I think in the World Test Championship, there is no such thing as weak opponents. Every opponent has got its strengths, and they present the opposition, which is us, challenges through their strengths. So our focus is obviously on our strengths, what we can do better, what we did well, carry that forward, but then also look at the strengths that the Bangladesh team brings to this series, and hopefully we can play some cricket that can result in 2 wins for us. Shan, with so many Australians in the backroom staff, all pace attack. 2 days before the 11 was announced, green tinge wicket. Is the Australian mentality creeping in Pakistan system? I think it's more about us. At the end of the day, we have to look at ourselves, and you have to be, as a test team, as a test playing nation, you have to be very flexible, and you have to adapt and adopt different conditions. You also have to look at your strengths. I feel in Rawalpindi, whenever we've played domestic cricket, the conditions have favored the seamers and the batters. Spin bowling hasn't been such a big threat, so we want to take what we do in domestic cricket forward rather than apply something new which we don't normally get in Rawalpindi. So again, it's, yes, we have a different coaching staff, they bring a different mindset, they bring a different culture, but we also have to look at ourselves and where we want to go as a side, and I feel that fast bowling has been Pakistan's strength. If you look at our squad, yes, we've lost Amir Jamal for a bit right now. Hopefully he'll be back very soon, but we've got 6 quality fast bowlers, and Test cricket, you need 20 wickets to win the game, and that's a non-negotiable. So our focus is on how can we get those 20 wickets. That's how we went into the Australian series, and hopefully that's how we're going to go into this series, and the first focus would be how can we get 20 wickets and how can the batsmen back up the bowlers in terms of getting enough runs so those 20 wickets turn into a win. शान भाई, कंसिडरिंग द कंडीशंस जो एक क्लाउडी भी हमें लग रही हैं, थोड़ी रेनी भी और थोड़ी ग्रीन टॉप भी हमें लग रही है, उन कंडीशंस को कंसिडर करते हुए मोहम्मद हुरैरा पर साइम अयूब को तरजीह देना और फिर मीर हमज़ा पर आप मोहम्मद अली को इंक्लूड किया गया है, वाई इज़ इट सो? क्योंकि जो कंडीशंस है उसमें टेक्निक जो वो ज़्यादा आपकी टेस्ट होगी, तो मोहम्मद हुरैरा पर और जो मोहम्मद अली पर ये आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर आप आइसोलेशन में सिर्फ देखेंगे, एक मैच की नज़र से देखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये इसके आगे क्यों नहीं खेला या ये बॉलर इसके आगे क्यों नहीं खेला. इसमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं. एक तो आपको ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, इस वक्त का जो रिज़ल्ट है, जो पाकिस्तान की पोजीशन है, हमें अपने एटलीस्ट होम मैचेस तो जीतने हैं, नंबर 1. नंबर 2, फिर आप ग्राउंड की कंडीशंस पे आ जाते हैं कि ग्राउंड किस टाइप की आपको कंडीशंस ऑफ़र कर रहा है. तीसरा, आप टीम का जो एक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्बिनेशन होता है. जैसे हमें लगा आमिर जमाल हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक वेपन था ऑस्ट्रेलिया में, कि जब बाकी 3 फास्ट बॉलर्स एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ बॉलिंग करते थे, तो आमिर जमाल आके अटैक करता था, उससे वो कुछ क्रूशल विकेट्स मिडिल में भी लेता था. और सबसे अच्छी बात थी कि जो ऑस्ट्रेलिया की टेल जो हमेशा मानी जाती है कि वो रन्स करती है 80-90-100 रन्स करके, जो मैच का डिफरेंस होता था, उस चीज़ को एलिमिनेट करता था आमिर जमाल आके. तो हमने सोचा जब शाहीन नसीम नया बॉल ले रहे हैं होपफुली कल, तो उसमें हमें कौन सा ऐसा बॉलर एक मिल सकता है जो बीच में आके उस तरीके से बॉलिंग करे जो आमिर जमाल करता था. और आई थिंक उसमें मोहम्मद अली की एक हम सबको PSL में एक सरप्राइज़ एलिमेंट लगा, बट हमने वो चीज़ काफ़ी अरसे से देखी हुई है कि वो आता है, वो डेक हार्ड हिट करता है, उसमें वो क्वालिटी है कि वो बॉल विद द सीम इन द एयर वो मूव करता है, थोड़ा सा उसका एक एक्स्ट्रा पेस भी है. तो ये हम नहीं कह रहे कि एक बॉलर दूसरे बॉलर से बेहतर है, हम ये कह रहे हैं कि इन कंडीशंस में हमें किसकी ज़रूरत होगी. जहाँ तक साइम की बात हुई है, देखें हमारे पास ओपनर में बहुत रिचेज़ हैं. अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक इस सीरीज़ में नहीं हैं, वो भी हमारे उसका हिस्सा हैं. हमेशा आप 17 प्लेयर्स पे नहीं रखते, हमारे 20-25 प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड का हिस्सा हैं और रहेंगे. बट कभी कभार आपको देखना होता है कि इस सीरीज़ में हम समझ रहे थे कि ये आइडियल चांस है, हम हुरैरा को देख सकते हैं, स्क्वाड में उसको ला सकते हैं और देख सकते हैं कि वो
क्या ऐसी चीज़ है जो मोहम्मद हुरैरा जिसने 3-4 साल से कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में रन्स की, वो पाकिस्तान टीम को क्या दे सकता है। तो हमने कहा कि इमाम को इस सीरीज़ में हम रेस्ट कराते हैं। साइम का केस ये है, देखें जो लास्ट टेस्ट मैच खेला, सेकेंड इनिंग्स में उसने पोटेंशियल दिखाई। तो जो एक एज ए टीम आपको एक मैसेज देना होता है कंटिन्यूटी का। जो लास्ट टेस्ट मैच खेला और उसने एक अच्छा ग्लिम्स दिखाया, तो हमारी कोशिश ये है कि हम प्लेयर्स को बैक करें, जब किसी को भी टीम में लाएं तो उसको एक मौका दें, उसको एक चांस दें, ताकि जब वो खेले तो उसको एटलीस्ट एक फेयर गो मिले। और हम यही कोशिश कर रहे हैं साइम के साथ इम्प्लीमेंट करने की, और वो अच्छे टच में लग रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त टीम का माहौल कैसा है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी दिन यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन जारी रहा या इवन ए टीम का जब मैच था, जितने भी हमारे प्लेयर्स आते थे तो उनसे टीम के माहौल पर ज़रूर सवाल किया गया, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह की बातें हुई थी। तो नसीम शाह ने जो इस्लामाबाद क्लब में ए टीम के मैच के बाद मीडिया से बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें एक दूसरे के लिए नीयत साफ़ रख कर टीम के लिए खेलना चाहिए। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि टीम का माहौल इस वक्त कैसा है। बिल्कुल, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा अगर हमारा फोकस है एज ए प्लेयर का, जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ एज ए लीडरशिप फ़िलासफ़ी, जो जेसन भी करता है, जो सारे प्लेयर्स भी करते हैं, वो ये है कि हर चीज़ ड्रेसिंग रूम से शुरू होती है। ड्रेसिंग रूम का माहौल जैसा होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम ऑफ द फील्ड गुजारना है, ड्रेसिंग रूम्स में गुजारना है, ऑन द फील्ड वो एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो जो चीज़ हम अंदर से सेट करेंगे वो बाहर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। हमारी कोशिश है कि माहौल अच्छा रखें, इंक्लूसिव रखें, हर प्लेयर ऐसा फील करे। और उसी में हमने बात की कंटिन्यूटी की भी, कि जब आप चांसेस भी देते हैं प्लेयर्स को कोशिश होनी चाहिए। जी हर बार नहीं होगा, ना हम परफेक्ट हैं, हमसे भी गलतियाँ होंगी सिलेक्शन में, हमसे भी कुछ गलतियाँ होंगी, बट कोशिश ये है कि प्लेयर्स को कंटिन्यूटी दें और ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा बनाएं कि जब प्लेयर्स जो आते हैं वो क्रिकेट को एंजॉय करें, और हमारे फैंस को, हमारे मीडिया को, हमारे सारे जो क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं उनको खुशियाँ दें। थैंक यू।